The guests have arrived. Please welcome them. I request all of you to please put your hands together as the guests have arrived. Quoting Malala Yousafzai, a girl who terrified the whole Taliban community and mind with just a book and no American stamp. I speak not for myself, but for those without voice. Those who have fought for their right to live in peace, their right to be treated with dignity, their right of equality, of opportunity, their right to be educated. Good morning to one and all present here. It gives us immense pleasure to welcome you all for the workshop on right to education, jointly organized by Abdul Khan Society and University Five-Year Law College, University of Rajasthan. As all the auspicious occasions are in the name of God, and when we are talking on education, we seek blessings of Saraswati Ma. So I request our guests to come forward and lighten us.
Atiti Devo Bhava. Guests have been given the place of God in our tradition. As our dignitaries have honored us by gracing this occasion, so now I call upon Mr. Pranjal Sir, to President Abhinathanam Society, to felicitate Honorable Justice V.S. Savesar. Sir needs no introduction. Sir has been Senior Advocate of Supreme Court, was former Judge of Rajasthan High Court, former Chairman, Rajasthan Law Commission, and former Chairman of State Bar Council. Sir is a man with great performance. Now, I would like to call Mr. Deep Chandrawat to felicitate Mr. N.M. Ramkar. Sir is a reputed senior advocate in the field of tax laws, a philanthropist and a tax expert of national repute. He has been chairman of faculty of Race Trust Trustees and hosted 750 tax conferences, seminars and workshops, and has contributed his articles and papers exceeding 400 in tax law journals. Sir has been felicitated with AIFTT Man of Millennium and Jain Seva Ratna Award by Sri Jain Seva Sangh Mumbai. He has all the qualities of a dignified service-oriented law professional. His contributions are meritorious. He serves the society and the humanity. He is a Gandhian by philosophy, and his trust has installed 23 marble statues of Father of the Nation, and is working for Nyayati Pariyojana for quick and clean dispensation of justice, apart from organizing Raka food competition since 2011. AFTC has installed many Raka awards. He has founded Ritu Shaka Mandir Foundation for Orphans. He has presented more than 2,500 law books to University of Rajasthan, Jareh Tax Professional Association, Kolkata, and others. He has extensively traveled all over the globe. Welcome, sir. Now, I call Mr. Piyush Jain, Secretary Abhinathanam Society, to felicitate Dr. Manju Kurban. Ma'am is currently director in our college, University, 5-year Law College, University of Rajasthan. Ma'am is holding this position since 2012. Also, ma'am received a gold medal PhD and LLB from our university only. Welcome, ma'am. Now, I request Krishnatha Talwar to felicitate Mr. Vinod Kumar Jain. Sir is currently working as Principal System Analyst at National Information Center, Jaipur, and Project Coordinator for statewide e-governance projects, RTE Online Portal, Rajasthan Sarv Shiksha Abhiyan, Rajasthan Madhyamik Shiksha Abhiyan, Rajasthan School GIS, Rajasthan Online Scholarship Portal, and many more. Their research paper entitled GIS-based proximity analysis of schools and e-governance initiative were published in 2012 in Journal of Environmental Science. For his dedication towards working, the government has conferred many awards on him. Recently, he has received appreciation from Honorable Vice Chancellor of Jai Narayan Vyas University, Jodhpur. Welcome, sir. Now, I would like to call Mr. Pranjal Singh, President Abhinathanam, to come forward and extend a welcome note to all our guests. Thank you so much, my friend. A very good afternoon to you all. Respected dignitaries of the dais, Honorable Justice V.S. Savesar, Honorable Sri N.M. Ramkar sir, Honorable Dr. Manju Purva ma'am, Honorable Vinod Kumar Jain sir. It fills my heart with great pleasure and joy standing before my brothers and sisters of Rajasthan University. It's a matter of pride for any student, as I was an ex-student of this university now. In 2008 and 2010 batchman, I was there for one semester when Middleman was there as a director. I left this college because of my personal standing for engineering. And today I got this opportunity back after 5 years to interact with you people,
my brothers, my sisters, my friends sitting over there of finance minister. Firstly, I would like to thank Dr. Manju Purwal ma'am, who believed in Abdul Khanam family and gave us this opportunity to present ourselves before you people. It's a red letter moment for Abdul Khanam Society to introduce you all about our initiative towards the international concern of child rights. Why we need the child rights implementation? We, the people of India, we are representing our country worldwide, and when we look at our grassroots, we find illiteracy. Education is very important for each and every person. If we talk about Universal Declaration of Human Rights, Article 26 itself says that education is compulsory. Primary education is compulsory. And if we talk about the Convention on Child Rights of United Nations, Article 23 itself says that right to education should be there. All the member states should ensure. We are so concerned about the rights. We all are law students sitting there. Okay? We are more concerned about the rights, but we fail to follow our duties. School Bharo Andolan is the implementation of fundamental duty of every citizen. I must say that. Yesterday I had a very good and a healthy conversation with Justice Dave sir. That time we realized that we should not fight for the rights. Indeed, it's a fundamental right of every child that it should get education in best of the schools, and even the RT Act itself gives 25% of reservation in private schools. Everything is given there on the banner of School Bharo Andolan. You will get each and everything in act, in laws. But my friend, that law should be there. There are so many laws legislated by the parliament. But are we able to read it? It's our duty. Being a lawyer, being law students, it's our fundamental duty to serve our nation first. So School Bharo Andolan is our duty. It's our duty to go there in that place where the child is residing. The weaker section, that disadvantaged group. This right is for two sections, weaker sections and disadvantaged group. What are weaker sections? The people who are in BPL category. The general category people whose annual income is less than 2.5 lakhs, 150 lakhs per annum. And if we talk about disadvantaged groups, it's for the backward classes, SC, SC, OBC, SBC, physically handicapped people, orphan children. It's a concern of fundamental human rights, my friend. So, for the implementation of RTE, as the title itself is workshop on right to education and its implementation. If I talk about implementation, then our fundamental duty will activate, for sure. Without following a fundamental duty, you cannot implement your fundamental rights. This is my point. This is my request to each and every person present in this seminar hall. School Bharo Andolan is our duty. We have to reach to each and every child. We have to make him aware about his right. Moreover, under Article 21A, there is a fundamental right for right to education. But under Article 51A clause K, there is a fundamental duty of each and every parent and guardian to give elementary education to his child. So, School Bharo Andolan is all about awareing those parents who are unaware about these fundamental duties. And if they will be aware of this fundamental duty, their children will automatically get their right to education. So friends, School Bharo Andolan, the purpose of this Andolan is to generate mass level awareness among the parents, educated society or uneducated society.
what is right to education, what are the policies, what is the procedure, how people can take benefit of this 25% reservation scheme. Nobody knows. There is a lack of awareness. And if we educated people are unaware itself, we can't impart awareness in our society. We can't impart awareness to our servants, our drivers, our neighbors, all of the people whom which we are working outside there. Auto drivers, bus drivers. So this is the only reason we are conducting this workshop amongst you people. Literate people, educated people, lawyers, future upcoming advocates, judges. Like ma'am also asked me that what is the need of having a workshop for educated people? They have education, they are already educated, they are doing graduation. But there is still a need to make you people aware about the fundamental duty towards the country. कर्तव्य, we talk about कर्तव्य. यह हमारा पहला कर्तव्य है कि हम देश की सेवा करें। अच्छी नीयत से जब अपनी देश की सेवा करेंगे हमारा करियर अपने आप बन जाएगा। नीयत साफ होनी चाहिए काम करने की। आज हम सभी लोग अगर ये संकल्प उठाते हैं कि राइट टू एजुकेशन के लिए हम 5 मिनट देकर अगर इस बैनर को भी पढ़ते हैं तो हमको 50% अवेयरनेस हो जाएगी और 50% अवेयरनेस तब हो जाएगी जब हम पूरे एक्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इस अवेयरनेस के थ्रू जब आप एक बच्चे का एडमिशन करवा दोगे, when you have a single child, you get that feeling कि because of your awareness, Indian is educated and that Indian will serve his country. You get that feeling like that. Right now, we are not having any activism towards rights. We are concerned about duties too. There is a very basic relationship between both of them. I remember that lecture, a very first semester, political science and political science, in this university only. I attended a class and I remember one statement of ma'am, but there is a very similar relation between rights and duties that one person should respect the right of another person. It is the most important fundamental duty. Are we respecting right to education? We are not. Because lack of awareness is also the violation of the rule of law. Because this is the only dharma. Inequality, non-arbitrariness. Awareness should be there for the implementation of rule of law in society. Awareness is must. What are the legislatures? What are the rights, duties? One should be aware of that. And to impart awareness, you should be aware first. Charity begins at home. It's not about joining a society or andolan. You take an oath, okay, you'll go to the provisions, you'll help a child. If you are coming here to attend this workshop, my request is that you should take an oath that I will definitely help a child to get admitted under RT. That's what I want to say to my friends, my brothers and sisters, honorable guests. Thank you so much, ma'am, again for giving me this opportunity to interact with you people. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, our honorable guests. The precious time after the hectic schedule at clear reports also, sir, we are highly indebted. We are highly obliged by your presence, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir. Jai Hind. Now, the time has come where I would like to invite Mr. Vinod Kumar Jain sir to enlighten us with his words on right to education. माननीय जगत साहब, राका साहब, मैडम पूर्वा एंड फ्रेंड्स, RT Act
बच्चे हैं वो एलिमेंट्री एजुकेशन वो पा सके। एलिमेंट्री एजुकेशन से तात्पर्य नर्सरी कक्षा या प्रथम कक्षा से 8वीं कक्षा, ये शिक्षा ये वो प्राप्त कर सके, इसके लिए आरटीई एक्ट लागू किया गया। राज्य सरकार के द्वारा इसके लिए काफी सार्थक प्रयास किए गए और उस सार्थक प्रयास के तहत अभी तकरीबन 5 लाख बच्चे आरटीई एक्ट के तहत राज्य में शिक्षा लेते हैं और जिनका पूर्ण भरण यानी कि फी रिएम्बर्समेंट राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। जहाँ तक इस इम्प्लीमेंटेशन की कुछ अच्छी बात है, ये तो एक बैकग्राउंड है बहुत बुरी। इसके लिए राज्य सरकार ने जो सार्थक प्रयास किए वो इसके लिए कंप्लीट ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन सिस्टम बनाया गया, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जो समस्या थी और वो समस्या क्या है कि जो स्कूल जहाँ पर पेरेंट्स आवेदन करते हैं या बच्चों को एडमिशन दिलाना चाहते हैं, तो उन पेरेंट्स के साथ में ये है कि वो स्कूल किन बच्चों को वहाँ प्रवेश देते हैं, अपने जानकारों को प्रवेश देते हैं, किसका देते हैं, उसके लिए पहला जो सार्थक प्रयास किया गया, इसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड लॉटरी सिस्टम चालू किया गया। अब ऐसा नहीं हो सकता कि स्कूल अपने किसी रिश्तेदार या अपने किसी परिचित किसी का एडमिशन दे, पहला सार्थक। दूसरा सार्थक प्रयास, अभिभावक आवेदन करते हैं स्कूल में, स्कूल आवेदन लेने से मना कर देते या अगर आवेदन लेते हैं तो उसका जमा नहीं करते। उसके लिए दूसरा ऑप्शन दिया गया कि अभिभावक ऑनलाइन आवेदन कर। इसके अलावा तीसरा, अप्लाई किया लेकिन फॉर्म में किसी भी प्रकार की कमी के कारण से उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। इसके लिए तीसरा जो प्रयास किया गया सरकार के द्वारा और वो किया गया ऑनलाइन एलिजिबिलिटी सर्वेक्षण, मतलब कि उसमें फॉर्म भरना है, उसके बाद में रिजेक्ट करने का या अप्रूव करने का जो राइट है वो ऑनलाइन सिस्टम को होगा। स्कूल या कोई भी जो ऑफिशियल लीडर है उसको रिजेक्ट नहीं करना। ये जो सिस्टम है बनाया गया, इस सिस्टम से जो फायदा हुआ कि अब कोई भी जो अभिभावक है, पहली बात ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं, लॉटरी का रिजल्ट घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं और तीसरा, अगर उनका एडमिशन कंफर्म हो गया तो उसका स्टेटस को स्वयं देख सकते हैं। अब चीज आती है कि ये जो स्कूल है उनको भी इससे फायदा दिया गया कि स्कूल को जो जिन बच्चों का वो प्रवेश दे रहे हैं उन बच्चों के बारे में जो रिएम्बर्समेंट है उसके लिए उन्हें कहीं भटकना नहीं, वो अपने स्कूल के द्वारा ऑनलाइन सिस्टम में उसमें सूचना भर के और उनको इसके बारे में पेमेंट प्राप्त होता है। अब इसके बारे में इश्यूज क्या है? अभी जो इश्यूज है, जैसा कि प्रांजल ने आप लोगों को बताया कि राज्य सरकार ने ये प्रयास तो किया कि इसको इम्प्लीमेंट अच्छे से किया जाए, लेकिन इसकी अवेयरनेस नहीं। आरटीई एक्ट क्या है और किसके लिए ये आवश्यकता है, किस प्रकार से इसके लिए अप्लाई किया जाए, कैसे इसमें आवेदन करें, क्या करें, किस प्रकार से इसमें प्रवेश हो सकता है, अगर हमें स्कूल प्रवेश देने से मना करें तो क्या होगा। तो पहली बात तो इसकी अवेयरनेस, कि अभी इस एक्ट के बारे में काफी कम अवेयरनेस। अगर हम आंकड़े को देखते हैं तो अभी जो तकरीबन अगर पहले 5 लाख बच्चों का प्रवेश इसके तहत हुआ, तो 5 लाख बच्चों में एक स्कूल में अगर एवरेज आ रहा है तो 10, 12, 15, 20 बच्चों का एवरेज आ रहा है। 10, 15, 12, 20 जो बच्चे आ रहे हैं वो या तो किसी परिचित के बच्चे या अड़ोस पड़ोस के बच्चे, एक आमजन जिसको इस सुविधा का लाभ होना चाहिए वो नहीं होगा। गवर्नमेंट के द्वारा भी जिस लेवल पे पब्लिसिटी इसके बारे में करनी चाहिए वो पब्लिसिटी में काफी कमी है। दूसरा एक और जो इसके अंदर है कि जो स्कूल हैं, जैसा मैंने आपको बताया, स्कूल अपने लेवल पे या तो फॉर्म देंगे नहीं या फॉर्म लेंगे नहीं, और अगर देंगे और लेंगे दोनों करेंगे तो उस फॉर्म में कोई कमियां निकालेंगे। इस प्रकार की इसमें तीसरी प्रकार की समस्या है जो आती है। और एक चौथी प्रॉब्लम जो और है वो है ड्रॉप आउट चिल्ड्रन। ये बड़ा एक अलग से इश्यू है कि बच्चे को प्रवेश नहीं दिया जाता, लेकिन बच्चा इतना गरीब तबके से है वो वहां पर स्कूल में उसको या तो अलग से बिठा दिया जाता है या उसके साथ
भेदभाव किया जाता है और बच्चा पहले दूसरे साल में स्कूल छोड़ के चला जाता है, तो ड्रॉप आउट। तो 3 प्रकार की समस्याएं या 4 प्रकार की समस्याएं जिसकी इम्प्लीमेंटेशन में मान है। एक तरफ तो मैंने आपको ब्रीफ के द्वारा ये बताया कि राज्य सरकार बड़े सार्थक प्रयास कर रही है कि इसका बेहतर इम्प्लीमेंटेशन हो सके, अभिभावक इसका समय पे सही फायदा उठा सके और जो स्कूल ये सुविधा का लाभ देंगे उनको पेमेंट सरकार कर सके। लेकिन दूसरी तरफ जो समस्या है वो आ रही है अवेयरनेस की। जहां तक अभी अभिप्राण सोसाइटी की बात हम करते हैं तो अभिप्राण सोसाइटी ने एक सार्थक प्रयास किया है। मैं समझता हूं कि राज्य स्तर पे ये पहला प्रयास है जो एक किसी ग्रुप ऑफ सिटीजन या एनजीओ के द्वारा किया जा रहा है और हम लोग इस प्रकार के प्रयासों की काफी सराहना करते हैं कि इन्होंने एक बहुत बेहतर माहौल बनाया। जिस भी क्षेत्र में इन्होंने काम किया उस क्षेत्र में काफी हद तक इन्होंने अवेयरनेस पैदा की। नॉट ओनली अवेयरनेस, जहां तक मुझे इनसे बात करने से पता चला कि खाली अवेयरनेस नहीं, अवेयरनेस के साथ साथ इन्होंने जो बच्चे हैं जो गार्जियंस हैं उनके फॉर्म भरा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इम्प्लीमेंटेशन बता रहा था कि पता चल गया कि ठीक है फ्री में 25% सीटों पे प्रवेश हो सकता है, लेकिन कैसे आवेदन करना है, कब तक आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। क्योंकि सरकार में एक समस्या है कि अगर आपको कोई सुविधा देगी तो सुविधाओं के साथ शर्तें खूब लगाएंगे। तो अगर आप यहाँ भी देखेंगे इसका ये बैनर आप ब्रोशर देखेंगे तो यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स नजर आएंगे कि अगर आप बीगर है तो आप बताओ कि आपकी इनकम 2.5 लाख से कम कैसी है, आप क्या जो एज ग्रुप है वो 3 वर्ष से 7 वर्ष के मध्य है, क्या आपका जो कैचमेंट एरिया है वो कैसे डिफाइन होगा कि आप इसी क्षेत्र में रहते हैं। क्योंकि इसमें एक धारा में ये भी है कि जो निजी स्कूल है वो केवल उन्हीं बच्चों को प्रवेश देंगे जो उनके कैचमेंट एरिया में रह रहे हैं। तो इन सब के लिए डॉक्यूमेंट्स लगा दो। तो जो अभी प्रांजल आपको बता रहे थे कि इस एक्ट को पढ़े, इनके जो यहाँ पर जो बैनर उन्होंने लगाया इसको पढ़े, उसके पीछे उद्देश्य ये भी है कि जो हमारे अशिक्षित या जो कमजोर वर्ग है उनके अभिभावक है उनको ये बता सके, सहयोग कर सके। अगर आपका घर में नौकर भी है और उसके बच्चे को आप प्रवेश दिलाना है और अगर उसको आप ये बता सके कि भैया ये डॉक्यूमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस एक्ट को पढ़ेंगे, एक और मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि यहाँ जितने भी आपके क्वेश्चन हो सकते हैं हम लोगों ने पुरजोर कोशिश की है कि आपका हर क्वेश्चन का आंसर इसकी साइट पर मिले। इसकी जो ऑनलाइन साइट है rte.raj.nic.in में यूज बीच में बोला। फॉर एग्जांपल की इनकम सर्टिफिकेट, फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ कि इनका डॉक्यूमेंट है तो इस प्रकार के डॉक्यूमेंट चाहिए फॉर द प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। अब हम सबके पास तो हमारा यहाँ पे इनकम का जो सर्टिफिकेट सॉरी डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट होता है, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं उन्होंने अपना जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया होता है। तो किस प्रकार के और डॉक्यूमेंट हो सकते हैं जो उनके जन्म प्रमाण पत्र के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से इनकम बड़ा अच्छे से इस एक्ट में लिखा हुआ है कि अभिभावक अगर प्लेन पेपर पे लिख करके दे देंगे कि मेरा ये बच्चा है और इसके जन्म नाम यह है, वो भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट। अभिभावक अगर ये लिख के दे देते हैं कि मेरी इनकम यह है, वो भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट। ये सब इसमें लिखा हुआ है लेकिन स्कूल को पता नहीं होता, पेरेंट्स को पता नहीं होता, वो भटकते रहते हैं इसके बारे में। अभी एक और परेशानी आ रही है जो इस वक्त अगर देखें तो बहुत बड़ी समस्या है जिसका समाधान हमने अभी लास्ट मीटिंग डे पे किया है, कैचमेंट एरिया। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे जितने भी जो एड्रेस के जो प्रूफ हैं उन सब के अंदर हमारा जो वार्ड है वो पुराना लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मेरा वार्ड है, मैं वार्ड नंबर 40 में पहले रहता था, मतलब मैं वहीं रहता हूँ जहाँ रहता हूँ, लेकिन मेरा वार्ड वहाँ वार्ड नंबर 40 लिखा हुआ है। अब राज्य सरकार ने जो रिसेंट परिसीमन किया उसके अंदर मेरा वार्ड बदल गया 54, लेकिन मेरे पास जितने भी डॉक्यूमेंट है वो वार्ड नंबर 40 के। तो अब इसका क्या समाधान, स्कूल भी मना कर देगा। तो इन सब के लिए भी हमने एक बड़ा सिंपल एक सर्टिफिकेट अभी परसों ही अप्रूव किया है, साइट पे लगाया है। उसके लिए भी कहा तो सिंपल आपको भरना है, अपने साइन करने हैं, मेरा पहले पुराना वार्ड ये था, नया वार्ड ये और मेरा रिसेंट प्रूफ ये। तो इससे हर चीज के एक्ट में और राज्य सरकार के स्तर पे इसमें समाधान दिए जा रहे हैं। जरूरत ये है कि आप सभी पढ़े
पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े, जाने और आम जन को इसके बारे में बताएं। मैं वापस से बहुत बहुत साधुवाद दूंगा अभियंत्रण सोसाइटी को इस प्रकार का जो एक आरटीई का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें इन्होंने काफी हद तक जो है जितना ये सहयोग कर सकते हैं काफी अच्छा इनका सहयोग है और इस प्रकार का सहयोग आगे बढ़ के सभी जगह से मिले तो मेरे ख्याल से इस एक्ट की धारणा जो उसका जो मेन जो मुद्दा है उसमें सहयोग मिल सके। Thank you so much, sir. Now I would request N.M. Ramdas sir to kindly come and illuminate the young minds with his words of wisdom. आदरणीय न्यायाधिपति श्री विनोद शंकर जी दवे, आज की इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि, जिन्हें मैं हमेशा नमन करता हूँ और इनका जज्बा इतना विशाल है कि आप लोग उनके संपर्क में आएंगे, उनसे सीखने रहेंगे तो आपको बहुत बहुत लाभ होगा। प्रिय जैन साहब, जिन्हें मुझे सुनने का पहले भी जयंती में अवसर मिला और आज भी उन्होंने बहुत सिलसिलेवार प्रक्रिया आरटीई के संबंधित आपको उसका ज्ञान दिया। प्रिय श्री संजय सिंह, जिन्हें मैं स्कूल भरवा आंदोलन के प्रणेता मानता हूँ और पिछले 2 वर्षों से मेरे संपर्क में आए हैं। हमेशा मैंने उनमें वह मन से, तन से और धन से भी सेवा का कार्य करना चाहते हैं और अपने साथियों को भी साथ में लेकर उन्नति उस क्षेत्र में लाने में अग्रणी है। मुझे खुशी है इसी तरह की एक कार्यशाला कुछ महीनों पूर्व आपने जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी में भी आयोजित की थी और बहुत शानदार तरीके पर उसे भी किया और आप बच्चों सेवा के बीच आप लोगों में संस्कार के कारण से जन्म से ही मिल गए। बहुत से बीज प्रस्फुटित होते हैं और बहुत से बीज ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। आपका जो है वो प्रस्फुटित हो, बढ़े, चढ़े, एक बड़े बरगद की पेड़ की तरह हो, जो की छाया थी। आपने इस सोसाइटी के माध्यम से सेवा का जो बीड़ा उठाया है, सेवा के क्षेत्र में आप आए हैं, उसके लिए आप लोगों का साधुवाद। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज संविधान में बहुत से अधिकार
दिए गए हैं और आर्टिकल 21 के अनुसार शिक्षा का अधिकार भी दिया गया है। उसके ऊपर प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु सरकारी क्षेत्र में सही कार्य को सही समय पर और सही तरीके से कराने के लिए आप जैसे स्वयंसेवकों की अति आवश्यकता है। अभी आपका कर्तव्य है जिन अधिकारों के संबंध में इंसान ने अभी प्रक्रिया की है और उसकी समीक्षा की है, आप से उन व्यक्तियों तक पहुँचाएं, उन बच्चों तक पहुँचाएं, उन परिवारों में पहुँचाएं जिन्हें इसका ज्ञान नहीं है, और यदि ज्ञान है भी तो वो अक्षम है, सक्षम नहीं है कि उस अधिकार का उपयोग कर सके। इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए आपको बहुत सी दुविधाएं आ सकती हैं। मैनेजमेंट से भी आपको कभी मिलने की आवश्यकता पड़ सकती है, उन्हें कन्विंस करने की आवश्यकता पड़ सकती है और उन्हें भी समझाने की आवश्यकता पड़ सकती है। उससे अधिक आवश्यकता पड़ेगी कि बहुत से विद्यार्थियों के या बच्चों के पेरेंट्स को यह तैयार करना कि वो अपने बच्चों को स्कूल में शिक्षा के लिए भर्ती करवाएं और भर्ती करवाने के बाद निरंतर ये देखते रहें कि वो वहाँ पढ़ते भी हैं और पढ़ करके क्या कुछ सीखते हैं। अखबार में पढ़ा गया सही भी होगा कि 5वीं क्लास के बच्चे, 7वीं क्लास के बच्चे एक सही टोटल भी नहीं कर पाते, हिंदी के शब्द भी सही रूप में नहीं बोल पाते। अशिक्षा भी है, अशिक्षा भी है और उसकी तरफ रुझान भी कम है। ये अब आपका कर्तव्य है कि ऐसे बच्चों को पिकअप करके सोसाइटी के माध्यम से और एक ग्रुप बनाकर प्रयत्न करें कि वो अपने अधिकारों को काम में लेकर इस देश के सुनागरिक बने। अभी रंजन सिंह जी ने एक जिक्र किया कर्तव्यों का। निश्चित रूप में संविधान में शुरू में हम आश्वस्त थे देश के नागरिक को हम अधिकार को प्रदान कर देंगे और कर्तव्य वो स्वयं जानते हैं, क्योंकि हर भारतीय में संस्कार के रूप में हमें पीढ़ियों से मिलते आए। परंतु स्वच्छंदता और स्वतंत्रता की चकाचौंध में हम अपने कर्तव्यों को भूल गए और इसलिए संविधान में आर्टिकल 51A को बाद में समाहित किया गया। मैंने भी एक पुस्तिका इस विषय पर लिखी है, कॉन्स्टिट्यूशनल परसेप्शन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। उसमें करीब 70 प्रश्न हैं और बड़ी सीधी सादी भाषा में
जो कॉमनर भी पढ़ करके समझ सकता है, ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है। यदि आप चाहें तो आमंत्रित हैं आपकी सोसाइटी उसको एक वर्कशॉप के रूप में, कार्यशाला के रूप में आयोजित करें और उसमें मैं अपने विचार व्यक्त करूँगा और उन पुस्तकों को एडवाइजेबल ये होगा कि आप दिन रखें, उसके 3-4 दिन पहले बच्चों को निश्चित कर दें और वो उसे पढ़ें, पढ़ करके सवाल जवाब पैदा करें बजाय कि सुनने से तो हालांकि हमारे 2 कान हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे से परंतु यदि आप जो आंखों से पढ़ेंगे, जैसा अभी दरी साहब ने कहा, कुछ क्षण पूर्व रियल लॉ कॉलेज में उसे अपने कागज के ऊपर नोट कर देंगे तो वो आपके माइंड में गिरेगा और आपकी इसलिए सिद्धांत में आप आयोजित करें हमेशा रहा हूँ जो सेवा के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, उन्हें जितना प्रोत्साहन दे सकूँ आपने याद किया, बड़ी खुशी हुई और मेरा में जो ऑर्गेनाइज किया इसमें आने में मुझे हमेशा आपने इसे ऑर्गेनाइज किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. Now I would request Honorable Justice V.S. Ravi, sir, to kindly come and enlighten us with his words of wisdom. Respected Rakasa, also again, Pranjul and his colleagues of the society, and dear students, let me apologize for each of you for keeping you waiting for long. But this was faculty of law, maybe 5 years or 3 years. I'm in the campus for last 3.5 years. So if any blame is to be shared with the 2 colleges. Besides this, I admire your patience. It is said, with patience and perseverance, you can overcome the mountains. They turn Mallory lived into second. They are the 2 which are the greatest qualities of a student of law. You should have patience, you should have perseverance. And I am happy you all have the same 3.5 hours waiting for 2 of us demonstrate. Thank you very much for being charitable to us. Otherwise, there are very few who are charitable to the 3rd generation. Akbar Allahabadi was a district judge during Britishers. वो एक बहुत बड़े शायर भी थे, अकबर अलाहाबादी का नाम बड़ा फेमस, उनकी कचहरी में शायरी ज्यादा होती थी, काम कम होता था। उनका एक बड़ा मशहूर शेर टिप्पणी कहते हैं बच्चों को और अखबार कहते हैं संस्कार। तो उन्होंने एक शेर लिखा तब की एजुकेशन प्रणाली पर 1926 या 27 के आसपास
कि तिप्र में बू आए क्या माँ बाप के अतवार की। बच्चों में माँ बाप के संस्कार कहाँ से आए? तिप्र में बू आए क्या माँ बाप के अतवार की, दूध डिब्बे का पिया ताकि मैं सरकार की। ये देश एक गुलाम देश था, आजाद देश नहीं था। और गुलाम देश में जो एजुकेशन सिस्टम था वो सरकारी नौकरी करो और अंग्रेजों की गुलामियत करो और उसमें अपना गुजारा करो। तो एजुकेशन का जो पर्पस था वो बाबू पैदा करना था, अफसर पैदा करना था, ब्यूरोक्रेसी पैदा करना था, देश के नागरिक पैदा करना था। देश के नागरिक पैदा करने का अगर कोई संस्कार था तो उसके लिए ऋग्वेद के पीरियड में जाना पड़ा। जब वसुदेव कुटुंबकम का एक स्लोगन दिया वेद के रचयिताओं ने और उसमें ये कहा कि सारा विश्व एक कुटुंब है, चारों वेद पढ़ लो, चाहे ऋग्वेद हो, चाहे सामवेद हो, चाहे यजुर्वेद हो, चाहे अथर्ववेद हो, न तो किसी चारों में किसी देवी देवता का नाम है, न किसी में कोई वर्ण व्यवस्था का नाम है, न किसी और किसी फिरका परस्ती का नाम है, न ये है कि मैं बढ़िया हूँ, मामा ने ये चलती है या हरिजन है। उसमें केवल केवल मानवता और मानवता का बात, इसके अलावा कुछ नहीं। उसको कालांतर में जब हमारे बहुत पंडितों ने जब कथा कहानी कहनी शुरू की तो माइथोलॉजी ने बहुत डेवलप हुई। तो माइथोलॉजिकल स्टडीज में बहुत सारे विकार और बहुत सारी तरह की विषयों की जो आप देख रहे हैं आज की तारीख में 33 करोड़ देव देवता का जो कंसेप्ट, जो 33 करोड़ उसकी पॉपुलेशन, तो हर आदमी के अंदर एक देवता देखा, मनुष्य में देवता, दो ही तरह के प्राणी थे, देवता, दानव और मानव। तो दानव और मानव के डिस्टिंक्शन में ह्यूमन राइट्स का सारा करता है। जो दानव है वो राइट्स को वायलेट करता है, जो मानव है वो फॉलो करता है, वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करता है, वो अपने राइट्स को परफॉर्म करता है। कॉरेस्पॉन्डिंग उस सोसाइटी से हमने चलते और हमने उन सारी कल्चर्स को भूल गए। अभी 3 महीने पहले 21 दिसंबर की बात है, I was delivering a lecture in the University of Florida on traditional agricultural system in this country. Agriculture, I'm not an agriculturist. I don't know agriculture studies. लेकिन दुनिया की कोई भी किताब ऐसी नहीं है जो वकील न पढ़ता या वकील का स्टूडेंट न पढ़ता। He is expert of all sciences in the world. Because you read today, आज आपके पास फॉरेंसिक साइंस का केस आएगा या बंदूक का केस आएगा तो आप उसके बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, विटनेस को तुरंत एग्जामिन नहीं कर पाते। अगर आपको बांध बांधने का केस आया और उसमें मिट्टी का एम्बेजलमेंट कितना हुआ तो जब तक उसकी इंजीनियरिंग नहीं आएगी आप दवा को तुरंत एग्जामिन नहीं कर सकते। अगर लड़की की एज को मालूम करने का फैक्टर है तो जब तक ऑसिफिकेशन टेस्ट के बारे में आप कुछ नहीं जानते और एनाटॉमी नहीं जानते, ये नहीं जानते किस हड्डी का ग्रोथ कौन सी एज में होता है, आप क्लासिफाई नहीं कर सकते। तो एक लॉयर का जो माइंड होता है उसका बहुत बड़ा दायरा होता है, बड़ा भारी उसका क्षेत्र, और उस क्षेत्र में हर केस हर रोज एक नया चैलेंज लेके आता है। उस चैलेंज के अंदर आप जब एग्जाम में बैठते हैं, मेरे साथ ऐसे बहुत मौके आए हैं जब कोर्ट्स को एक्सपर्ट्स बुलाने पड़े
मैं गोडा डैम का केस कर रहा था, जब कोर्ट ने कहा कि हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं कहा चीफ इंजीनियर को बुलवा के बैठा लीजिए, वो आपको समझाएगा। लेकिन जब तक टेक्निकलिटी नहीं जानेंगे तब तक आप केस का डिसीजन सही नहीं कर पाए। चीफ इंजीनियर को बोला, चीफ इंजीनियर ने पूछा कि भाई इन्होंने बहस की, उससे आप कहाँ तक सहमत हैं? तो चीफ इंजीनियर ने कहा था हम दोनों को एग्जाम में बैठा लेंगे तो इनके नंबर ज्यादा है कि मेरे कम है, because I read it the same day. My knowledge is very fresh because I read it, I studied from an analytical point of view, analyzing it, that I had to shift the grade of the chef. दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग अगर मुझे करना है लीजेंडरी स्वयं के जैसे, तो मेरा माइंड उतना माइंड सेट होना चाहिए लॉयर का कि वो उसको शिफ्ट कर, उसके लिए इन डेप्थ स्टडी, वो इन डेप्थ स्टडी की जरूरत जो होती है वो माइंड सेट बचपन से तैयार होता है, कॉलेज की पढ़ाई से नहीं होता, खाली संस्कार से नहीं होता। राइट टू एजुकेशन में एज क्या है? 6 से और 14 तक, 6 to 40। 6 साल तक बच्चा क्या करेगा? उसकी फाउंडेशन जो बनेगी वो पहले 6 महीने में कितनी बनेगी, उसके बारे में हमारी क्या सोच है? Has any member of the parliament is given thought to it? Has anything has been done whether with this boy from this locality जिसका मैं लॉटरी निकाल रहा हूँ और जो विद्याश्रम में जा रहे हैं उसके 75% लड़कों के साथ जब वो बैठेगा तो उसका आईक्यू उससे मैच करेगा या न करेगा, या उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होकर वो ड्रॉप आउट करेगा या न करेगा, इसके बारे में मुझे अपना माइंड अप्लाई करना, because he should match with it. What is the necessity is to train a child from the day he is in nursery. And that is why the Western education at times is far better than the education in our country. There the child born is the child of the nation. आपने नॉर्वे का वो केस देखा होगा जिसमें बच्चे को उसने नॉर्वे का तो कहा नॉर्वे का बच्चा रोया जोर जोर से, माँ ने उसको उपेक्षित किया, उन्होंने बच्चे को छीन लिया। इंडिया माँ बाप आए नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट्स। अमेरिका में जो 2 साल का बच्चा वो कहता है आई एम प्राउड टू बी ए सिटीजन ऑफ अमेरिका, इट डज नॉट से आई एम प्राउड टू बी बोर्न इन दिस फैमिली। It doesn't mean that he doesn't belong to the family. He belongs to the family. I attended 3 graduations in American University of my grandchildren. और मैंने हर दफा देखा जितने ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं उतने पेरेंट्स नहीं आते। दादा दादी नाना नानी परनानी। एक दफा खारकोफ के एयरपोर्ट पे मैं उतरा, 1979 की बात है, जब मैं वकालत करता था। आई वाज गोइंग टू लातविया, तो खारकोफ के एयरपोर्ट पे कोई 250-300 बुड्ढे बुड्ढी खड़े हुए थे। तो मैंने पूछा कि ये सब क्या भीड़ है? उन्होंने कहा वो बच्चों की वो वैकेशन शुरू होने वाली है, तो चार्टर फ्लाइट आएगी शहर से गांव के बच्चों को लेकर, तो ये सब बच्चों के दादा दादा नाना नानी जो है उनके इंतजार में है, ये अपने अपने गांव और अपने घर ले जाएंगे उनको छुट्टियां बिताने के लिए। दैट इज द respect for each other. They do not live together 24 hours, but they have the same respect and same by living separate. We do not learn that much. हम पायनियर क्लब नहीं शुरू करते क्या? 4 दिन पुरानी बात है, गोपाल मोदी है इंडस्ट्रियलिस्ट है मार्बल, उसके 2 जुड़वा ग्रैंडसन, तो वो ऑस्ट्रेलिया से है, इसकी लड़की है। मैंने कहा सोनाली तेरे बच्चे कितने बड़े हो? मैंने कहा बड़े पापा 2 साल के हो गए। मैंने कहा स्विमिंग सिखाया आपने? मैंने कहा स्विमिंग सिखाया आपने? सुनिए आप, सोनाली बोली बड़े पापा ऐसा है कि वो मैं गई थी लेके, तो उन्होंने बच्ची तो गलिया लेके कहा यू आर लेट। जब 6 महीने का बच्चा होगा तब तुमको दाखिला दे देना चाहिए। तो स्विमिंग पूल में दाखिला 6 महीने में,
At that stage, he starts learning swimming. At that time, the child starts learning all hobbies. 6 साल का बच्चा जब वहां स्कूल जाता है, तो हमने यहाँ कॉपी की है, उस दिन उसको ये मालूम होता है मेरी हॉबी कौन सी है जिसको डेवलप करके मुझे वो फैकल्टी लेनी है। अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, बास्केटबॉल में अच्छा है, तो पीएचडी बास्केटबॉल में निकलता है। Because basketball is also a subject for post-graduation, because he has to teach among all others. So we lay the foundation of education at time when the child starts understanding the symbols. मान लीजिए कोई लड़का जो है जो बोल ही नहीं पाया, 3 साल तक गूंगा रहा, 4 साल तक गूंगा रहा, आप कहाँ उसको एजुकेट should know it कि वो deaf and dumb में जाएगा, और deaf and dumb में जाएगा तो you should know the language of signs. आप और मैं जो कम्युनिकेट कर रहे हैं हिंदी में, तो हिंदी लैंग्वेज, अंग्रेजी में शुरू किया तो अंग्रेजी लैंग्वेज, या आपने अंग्रेजी पढ़ी है वो करिए। अगर मैं कोई स्पेनिश का वर्ड बोलूंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा, फ्रेंच का बोलूंगा तो भी नहीं आएगा। एक मूक बधिर के सामने जब मैं इशारे से बात करूंगा और उसकी लैंग्वेज ऑफ साइंस समझता हूँ, तो वो कश्मीर से कन्याकुमारी और अमेरिका से चाइना तक का बच्चा समझेगा जो मूक बधिर। दैट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज ऑफ साइंस इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज ऑफ गैंगस्टर्स इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। हिंदी एंड इंग्लिश इज नॉट एन इंटरनेशनल। When the child starts learning this language at the time he is below 6 years. लेकिन अभ्युत्थान सोसाइटी को अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी करना है, तो उसका बीज जब होना पड़ेगा जब वो बच्चा 6 साल का विश्वास के साथ उस स्कूल में जाएगा जिस स्कूल में उसको दाखिला है। अगर उसमें वो आत्मविश्वास आप पैदा नहीं करते 6 साल के पहले, तो वहां से बेचारा फिट क्या है, वो जब घर का रहेगा नहीं काम करेगा। इसके राइट टू एजुकेशन के इम्प्लीमेंटेशन में जो वर्ल्ड काम ने लिया, अब मुझे इस बात ये काका साहब ने जिक्र किया फंडामेंटल ड्यूटी का, नाम वेरी हैप्पी, ट्राइंग टू टू इट वेरी सीरियसली। आई टोल्ड हिम यस्टरडे, अब बूढ़े आदमी के पास कोई नया लड़का आ जाए तो बड़ी उसको तो टाइम मिल जाता है, मेरा 2 घंटे निकल जाएंगे, 3 घंटे निकल, मतलब बच्चा भले बोर हो, but I'm happy that he learned all what I told him yesterday. I'm extremely happy. और जब मैं कहीं जाता हूँ तो वही पैराबल एक बाइबल में आती है जिसमें कहा कि एक आदमी गठरी लेके बीजों की जा रहा था, तो गठरी बिखर गई, तो बहुत सारे पत्थर पे गिर गए, तो इधर उधर हो गए, बहुत सारे झाड़ियों में अटक, बहुत सारे पानी में गिर गए, एक गिरा उनमें से फर्टाइल लैंड, उसने 1000 बीज फैलाए। I want that one seed to come which produces 100 seeds again or 1000 seeds again. So motivation is the system. वो मोटिवेशन करने का ही काम थर्ड जनरेशन का है, हम आपको मोटिवेट करें। एक कानून क्या है, कानून क्या नहीं है, क्या कैसे इम्प्लीमेंट होगा, कैसे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो आपके टीचर पढ़ाएंगे, आप पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे, लेकिन उसका सही माना सोसाइटी को आप क्या देंगे कि मानवता का संस्कार देंगे क्या नहीं। मानवता का संस्कार कॉलेज और स्कूल की बिल्डिंगों के बीच में नहीं, वो उससे पहले ही आता है। मिट मनुष्य ने नहीं इसके रचा जगत की, तो मुझसे गिटा करूंगा रहने आस्था, शत्रु मनुष्य को सावधान हो, शत्रु मनुष्य के सावधान हो, मिट गया मनुष्य पर मनुष्य तो नहीं मरा, मनुष्य के लिए बनी मनुष्य की परंपरा, ये मनुष्य की परंपरा है। वो मनुष्य पैदा है, वो इंसान पैदा है, वो इंसान आपके कंट्री पर। We the people of India, they were the constitution, use the pressure, they use with the confidence that we who have given to ourselves this constitution will keep it safe. नानी पाल के बारे में We the people किताब में लिखा, the tricolor of this country is red,
which is saffron, white and green, has been converted to black, red and scarlet, because black money, scarlet corruption, and there is one more word. Black, red and scarlet. I have slipped about anyway. But that is what he had to say. Because we are destroying the character of the whole hospital. We have to check that file. मैं कल इनसे कह रहा था कि जब स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगी मुझे आज भी कहने में कोई शर्म नहीं है. I was one of the supporters of state of democracy. I mean state of emergency. Because you cannot take law in your own hands. It was we, I was part of that committee who suggested Article 51A of the Constitution of India. Because we say unless you teach the fundamental duties, you cannot make it a nation. Our misfortune is that because it was part of 42nd Amendment, it is not being taught in any of the institutions. Unless you read it, unless you apply it, unless you make it your Gita, Bible and Quran, you could not be say that you are worthy of a student of law institute. Law institute is one who will give the country to the people. अभी उनका बरगद का पेड़ ये जैसे वाला मैं माफ करना रहा कहता मैं बरगद के पेड़ का बहुत एडमायर नहीं क्यों बरगद के पेड़ को मैं कभी बहुत बड़ा पेड़ इसलिए नहीं मानता कि वो किसी दूसरे को पनपने नहीं देता उसमें असंख्य नीचे पैदा हो सकते हैं छोटे छोटे लेकिन विशालता कोई ग्रहण नहीं विशालता ग्रहण करने के लिए उसको ट्रांसप्लांट खाली जमीन में होना पड़ेगा जहाँ उससे भी ऊंचा जाए Break as you may, O stormy pride, will yet win the future when the day is bright. कि एक बड़ा बड़ा तूफान आता है तुम मुझे तोड़ दोगे मैं टूट जाऊंगा लेकिन मेरे जो बीज बिखरेंगे 1000 पाइन और बनेंगे जो तेरे से लड़ेंगे ग्रीन रे तो मैं फिर भी रखूंगा इस धरती के ऊपर तो कितनी बिजली गिर 1000 बिजली गिरते आसमान से जंगल के सब नहीं because that seed is grown once and बिखरता that is what is education इसे एजुकेशन का रियल मतलब समझ के उसको अप्लाई करना दैट इज द टास्क बहुत मैं साधुवाद दूंगा जिन्होंने सोसाइटी बनाई है अभ्युत्थाना वर्ल्ड भी इन्होंने लिया यदा यदा धर्मश्रीवादी भक्तिवाद गीता से लिया जब जब संसार में वो आएगा तब तक मैं अवतार हूँ तो आपने अवतार करके इसमें लिया है तो आप अवतार अगर करके आए तो इसको आप उसी दृष्टिकोण से लाएं जवाहरलाल नेहरू का 1927 का एक लेक्चर है कभी मौका पड़े तो पढ़िएगा ब्रसेल्स में दिया था उनका वी डू नॉट वांट फ्रीडम फॉर इंडिया बिकॉज़ फ्रीडम इज गुड एंड slavery is bad we want freedom for India because it's a question of life and death for the teeming billions of the people languishes with hunger and कुछ एक वर्ड और उन्होंने लास्ट में लिखा when we base our constitution we'll make it for administration of the peasants and workers of the country industrialists world में peasants and workers of the country and then last one I want to warn you the entire third one that I am not afraid of British imperialism we'll win it over but what I am afraid of is the American imperialism which I see on the horizon and all indications point to it that who is going to make an Anglo-Saxon bloc to dominate the rest of the world. जो 1927 की जन्म पत्री थी आज FDI उस जन्म पत्री को साक्षात कर रहा है हम अंग्रेजों की गुलामियत से निकल गए लेकिन कैपिटलिज्म की गुलामियत में जाते आ रहे हैं at the cost of the farmers of this country whose children for whom this right to education is made unless we teach them what are their rights along their land
there would be no purpose of the education. The purpose of the education, I tried to, time बहुत हो गया, 1:30 बज गया, इसलिए I like to conclude here. और एक संपर्क स्थापित रखना चाहिए. You should all be very close to your third generation, because your parents have lesser time for you, but your third generation, your grandparents have always time to interact with you and share their experiences of life. You have tremendous knowledge, you have tremendous information. You are encyclopedia of. I have to seek your support. A great children, great grandchildren, I have to call them. And I have to seek their assistance. But when they come to me, I try to share my knowledge with them. And when my experience with them, when the experience is blended with knowledge and information, it becomes wisdom. And student of law must be wisdom personified. I wish you all the Getting bored just telling you, okay, it's a very interesting story of 2 minutes. स्वामी विवेकानंद के 2 शिष्य थे. स्वामी विवेकानंद को सब जानते हैं ना? स्वामी विवेकानंद the great man. स्वामी विवेकानंद के 2 शिष्य थे. उन्होंने एक बार स्वामी विवेकानंद से पूछा कि हमारे जीवन का महत्व क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है. स्वामी विवेकानंद ने उदाहरण दिया कि एक बार एक किसान था. उस किसान के खेत में 2 गेहूं के बीज थे. उन 2 गेहूं के बीज की एक कन्वर्सेशन हुई. क्या वार्ता कर रहे थे गेहूं के बीज? एक गेहूं का बीज बोल रहा था कि भाई देख, ऊपर किसान है, पानी दे रहा है, निकल मत जाएगा, काट देगा. दूसरा वाला बीज कहता है, अरे यार सही है, माय गॉड, ये तो बड़ा मतलब है. ये इंसान तो बड़े मतलब ही होते हैं, काटेंगे हमको, चलो नहीं जाता. अब वो बेचारा किसान अच्छी नीयत के साथ उसको पानी दे रहा है, उसको खाद दे रहा है, उसको सारी चीजें दे रहा है. अब क्योंकि वो बीज है, उसको तो बचना है. वो कहता है नहीं मत जाना, ऊपर काटेगा. बोलता ठीक है. फिर वो देखता है कि उसके साथ के बीज ऊपर हो गए हैं और हरे हरे हो गए. उसने कहा ये क्या रोका हुआ, बाहर की दुनिया में इनको तो नहीं काटा. उसने कहा भाई देख, तू महावीर है, एक होते हैं ना लैब पुलिंग करने वाले के साथ 4 लोग बैठे, 5 लोग समझा रहे हैं यार इंजीनियर सर्टिफिकेट्स हैं, यू नो इट्स अ वर्कशॉप, गुड पीपल आर कमिंग. आई वाज लाइक दैट. ओके, यू जस्ट नीड अ पुश. ठीक है. सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि हमको संस्कार और समाज सेवा के बीच जन्म से मिलते हैं. कोई उनको खो देता है, कोई उनको बरकरार रखता है. जो बरकरार रखे हुए वो आज हमारे बीच बैठे हैं, और जो खो चुके हैं या जिन्होंने बरकरार भी रखी है, शायद वो यहाँ नहीं आ पाए हैं किसी कारण से. आई वुड लाइक टू से दैट. तो फिर क्या हुआ, दोनों बीजों के बीच में बात हुई. एक बीज ने कहा भाई नहीं उठना, उसने कहा नहीं भाई उठना है. तो थोड़े दिन बाद उसने कहा भाई तू बैठा रहे, मैं तो जा रहा हूं. दूसरा बीज तुरंत उठ गया. उसको लगा कि नहीं ये ईमानदार है, ये किसान बहुत ईमानदार आदमी है, मुझे जाना चाहिए ऊपर. वो चला गया. उसने देखा कि जैसे ही वो बीज ऊपर आया, किसान उसको देख के बड़ा बहुत बहुत प्यारा मुस्कुराया कि आ मजा आ गया, इस पर तो थोड़े गेहूं लगेंगे. गेहूं का देखा है ना, अपने होली पे जलाते हैं, है ना. वो बहुत खुश हुआ. उसने कहा यार तो ये कह रहा था काट, ये तो उल्टा हो गया. ये कोई वृक्ष नहीं, ये गेहूं का छोटा सा, कोई विशाल नहीं, कोई छाया नहीं दे सकता, कुछ नहीं दे सकता. फिर उसने कहा भाई देख तू नहीं समझ रहा है, काट देगा. तो कह रहा तू चुप बैठ जा, अब मैं आगे हूं, अब मुझे ग्रो करने दे. ठीक है. एक दिन क्या हुआ, जब वो गेहूं पूरा पक गया, पीला हो गया, तो किसान उसको बड़ी टेढ़ी नजर से देखने लगा. वो डाउट में आ गया कि यार रोज तो देख के खुश होता है, आज ही मुझे ऐसे देख के टेढ़ी नजर क्यों बना रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? किसी को समझ नहीं आ रहा? आ रहा है ना सबको? आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स. हेलो. ठीक है. तो ये बहुत कमाल की बात है, ये हमारी जिंदगी से जुड़ी बात है, इसलिए मैं उठा रहा हूं. सब लोग लेट हो रहे हैं, फिर भी इस बात को कहना चाहूंगा. तो वो किसान उसको देख के कहता है टेढ़ी नजर से, और फिर स्माइल करता है कि चलो इस बार मेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे. वो बीज फिर दोबारा सोचता है कि मेरे कटने से इसके बच्चे भूखे नहीं रहेंगे. क्या प्रॉब्लम है कटने में?
तो स्वामी विवेकानंद का कहना था, अगर बीज बने हो तो वृक्ष बनो, अगर धरती पर जन्म लिया है, इस देश की धरती पर जन्म लिया है, तो सेवा करो। बीज बने हो तो उपजो, कुछ ऐसा जग कल्याण का कार्य करो जिससे आपके माँ बाप भी गौरवान्वित महसूस करें, अपना देश को आप पे गर्व होना चाहिए। वो बीज भी नहीं सोचता सेक्रीफाइस होने से पहले, वो चाहता तो वो भी और बीजों की तरह नीचे दबके रह जाता, क्योंकि सारे बीज कभी उपजते नहीं है। इसलिए अपने अंदर से उस सोच को डेवलप करो। यू टेक आउट योर टाइम, योर प्रीशियस टाइम फॉर सोसाइटी, फॉर योर कंट्री। You should take out time for the country first, because always there is a country first. देश पहले आता है, ठीक है। एंड एनजीओ जो होती हैं, जितना कंसेप्ट मैंने समझा है, ये सेवा करती हैं, सेना नहीं बनाती। मेरा उद्देश्य यहाँ पर सेना भर्ती का नहीं है कि आंदोलन चलाया और उसमें बहुत सारे लोग जोड़ दिए। जब सेवा करता है ना आदमी, तो सेना अपने आप तैयार हो जाती है, पीछे पीछे लोग जुड़ते हैं। गांधी जी ने अकेले शुरू किया था आंदोलन, उनके साथ पूरा देश जुड़ा। इवन ही वाज क्रिटिसाइज्ड इन लंदन व्हेन ही स्टार्टेड सत्याग्रह एंड दैट दांडी मार्च, बट आफ्टर दैट नाउ इंग्लैंड पार्लियामेंट के सामने उनकी मूर्ति का अनावरण हो रहा है। सी द चेंज। सो बीज बने हो तो उपजो, मैं बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन हु अटेंडेड दिस वर्कशॉप। थैंक यू सो मच फॉर द ऑनरेबल डिग्निटरीज। थैंक यू सो मच यूनिवर्सिटी स्टाफ। थैंक यू सो मच साउथ पीपल। थैंक यू सो मच फैकल्टी। Thank you so much God. Thank you so much Bharat Mata, who gave us this opportunity to take work on this land, this holy land of Aryans. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot. We thank our guests for coming in here, and to all the students who have attended this session, the certificates will be given at the registration desk.